That's bloody brilliant. All right, now he is saying that was bloody brilliant. That was bloody brilliant. Okay, and it means कि ये तो कमाल था. Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do an extremely amazing thing, and that is we will be learning English with Harry Potter. Yes, you heard it right. Harry Potter. So, what exactly are we going to do in this video today? मैंने एक छोटी सी clip ली है from the Harry Potter movie and all the dialogues which will be there in that particular clip. I'll give you the correct explanation of all those dialogues. जिन भी words के meanings आपको easiest language में I'm going to explain it to you and the Hindi translations. So, see, one more thing. If you think that this video is for only the beginners, then you're completely wrong. अगर आपको English आती भी है, still this video is going to help you a lot. Now, how? See, when you'll be seeing this video, you will learn that how can you speak English with expressions and fluently plus smoothly. So, if you want to learn English in the most fun and interesting way, then you are at the right place because we are not going to do any boring grammar rules and the heavy theories. No, we are not gonna do this in this video. We'll just take an extremely interesting clip and उसमें जो भी dialogues होंगे I'll explain you. That's it. So आप बोर भी नहीं होंगे, आप उस मूवी के सीन को भी देखोगे और साथ के साथ बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी करोगे. So let's just go straight to the scene. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue which we are having in this particular clip. Let's start. I think we're going to need. Alright, so the first thing he's saying is, I think we are going to need. I think we are going to need. So let's see what is after this. Another feather of it. I think we are going to need another feather over here, Professor. I think we are going to need another feather over here, Professor. Now, what does it mean? What do you think the meaning of it is? So, I think we need another feather over here, Professor. It means कि he's saying, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि हमें एक और पंख की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेसर. मुझे लगता है कि हमें एक और पंख की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेसर. तो सेंटेंस क्या था हमारा? सेंटेंस था आई थिंक वी आर गोना नीड वन मोर फेदर अनदर फेदर ओवर हेयर प्रोफेसर. और इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि हमें एक और फेदर की जरूरत पड़ेगी प्रोफेसर. ठीक है, तो एक बार मैं इसको आपको हिंदी में लिख के भी दिखा देती हूँ जिसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे. स्पीकिंग प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए करेंगे बट एक बार आपको मीनिंग भी पता होगा तो और इजीली आप उसको समझ पाओगे. गॉट इट? लेट मी जस्ट राइट द हिंदी वन एज वेल. मुझे लगता है कि हमें एक और पंख की जरूरत पड़ेगी. प्रोफेसर. ठीक है, सो क्या सेंटेंस था? आई थिंक वी आर गोना नीड अनदर फेदर ओवर हेयर प्रोफेसर एंड इट मींस कि मुझे लगता है कि हमें एक और पंख की जरूरत पड़ेगी प्रोफेसर. दैट्स इट. सो जो भी हमारा इंग्लिश वाला पार्ट था, लेट्स ट्राई टू से इट अगेन एंड विद एक्सप्रेशंस. गॉट इट? सो आई थिंक वी आर गोना नीड अनदर फेदर ओवर हेयर प्रोफेसर. आई थिंक वी आर गोना नीड अनदर फेदर ओवर हेयर प्रोफेसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायलॉग की तरफ. Professor. We made it. ऑलराइट, सो इसके बाद ही सेड वी मेड इट. वो कहीं जा रहे थे, वो लेट हो गए थे वहां के लिए बट वंस दे रीच्ड, एक बार वो वहां पहुंच गए थे, ही सेड वी
मेड इट एंड वी मेड इट का मतलब होता है कि हम पहुंच गए, ठीक है, हम पहुंच गए। सो वी मेड इट मीन्स हम पहुंच गए। गॉट इट? लेट्स सी इट अगेन। वी वी मेड इट एंड इट मीन्स कि हम पहुंच गए, ठीक है। सेंटेंस क्या था? वी मेड इट। ऑलराइट, क्या सेंटेंस था हमारा? वी मेड इट एंड इसका मतलब क्या है? हम पहुंच गए, ठीक है, हम पहुंच गए। सेंटेंस क्या है? वी मेड इट, मतलब क्या है? हम पहुंच गए। कभी भी आपको ये चीज बोलनी हो, कहीं आप पहुंच गए हो या आपने कुछ काम कर लिया है, उसके लिए व्हाट सेंटेंस कैन यू यूज? फर्स्ट फ्रेज, वी मेड इट। वी मेड इट। ओके, से इट आफ्टर मी, वी मेड इट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। Can you imagine the look on the girl's face if we... ऑलराइट, after that he is saying that, can you imagine the look on old McGonagall face? So he is saying कि can you imagine the look on old McGonagall's face? So इसका मतलब कि McGonagall, ठीक है, McGonagall, so she is the lady and ये उनको जादू सिखाती हैं। So that is why वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या तुम इमेजिन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर मिसेस मैगोनिकल हमें देख लेती लेट होते हुए तो उनकी शक्ल का, उनके चेहरे का क्या हाल होता? ठीक है? लेट मी फर्स्ट राइट इट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर मैगोनिकल हमें देर से आते देख लेती तो उनके चेहरे का क्या हाल होता? ठीक है? सो क्या सेंटेंस है हमारा? कैन यू इमेजिन द लुक ऑन ओल्ड मैकगोनागल फेस इफ वी वर लेट? एंड इट मीन्स कि क्या तुम सोच सकते हो कि अगर मैकगोनागल हमें देर से आते देख लेती तो उनके चेहरे का क्या हाल होता? ठीक है? आगे देखते हैं। face if we were late? That's bloody brilliant. Alright, now he is saying that was bloody brilliant. अब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त बताना हो, तो आप क्या फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो? That was bloody brilliant. Got it? That was bloody brilliant. What can you say in that point? That was bloody brilliant. Okay, and means कि ये तो कमाल था, ये तो कमाल था। And हिंदी, see, let me just write it. ये तो कमाल था, ज़बरदस्त। Got it? That was bloody brilliant. ये तो कमाल था, ज़बरदस्त। ठीक है? That was bloody brilliant. ये तो कमाल था, ज़बरदस्त। Alright, now let's move forward. Thank you for that assessment, Mr. Weasley. Alright, and after that she is saying
Oh, thank you for that assessment, Mr. Weasley. Oh, thank you for that assistant, Mr. Weasley. And it means कि धन्यवाद, धन्यवाद अपने इस मूल्य. See, yeah, assessment means here she is talking about the compliment which he is giving. तो वो बोलना चाहते हैं कि धन्यवाद जो भी आपने मेरी तारीफ करी उसके लिए मिस्टर Weasley. Okay, Mr. Weasley. Okay, so तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर Weasley. Okay. तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर Weasley. So what was she saying? Oh, thank you for the assessment, Mr. Weasley. Oh, thank you for the assessment, Mr. Weasley. आगे देखते हैं. Perhaps it would be more useful Perhaps it would be more useful. if I were to transfigure Mr. Potter and yourself into a pocket watch. Alright. After that, she is saying that perhaps it would be more useful if I transfigure you and Mr. Pocket into a Miss you and Mr. Potter into a pocket watch. What does she is saying? That perhaps it would be useful if I transfigure you and Mr. Potter into a pocket watch. What does it mean? It means कि तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी अगर, ठीक है? अगर मैं तुम्हें और मिस्टर पॉटर को एक यहाँ पे शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ पॉकेट वॉच, एक पॉकेट वॉच बना दूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी कि अगर मैं तुम्हें और मिस्टर पॉटर को एक पॉकेट वॉच बना दूँ। गॉट ऑलराइट, लेट मी राइट इट. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी अगर मैं तुम्हें और मिस्टर पॉटर को पॉकेट वॉच बना दूँ, ठीक है? क्या सेंटेंस है हमारा? Perhaps it would be more useful if I transfigure you and Mr. Potter into a pocket watch. And it means कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी अगर मैं तुम्हें और मिस्टर पॉटर को एक पॉकेट वॉच बना दूँ। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी अगर मैं तुम्हें और मिस्टर पॉटर को पॉकेट वॉच बना दूँ। Got it? Sentence क्या था? Perhaps I think it would be more useful if I transfigure you and Mr. Potter into a pocket watch. Alright, आगे देखते हैं. That way, one of you might be. Alright, after that she is saying that way one of you might be on time. That way one of you might be on time. It means कि इस तरह से तुम दोनों में से कोई एक तो समय पर आएगा. इस तरह से तुम दोनों में से कोई एक तो समय पर आएगा. ठीक है? So क्या सेंटेंस है हमारा? That way one of you might be on time. That way one of you might be on time and it means कि इस तरह से तुम दोनों में से कोई तो टाइम पर आएगा. इस तरह से तुम दोनों में से कोई तो समय पर आएगा. ठीक है? What does she say? That way
one of you would be on time. That way, one of you might be on time. इसका मतलब कि इस तरह से तुम दोनों में से कोई तो टाइम पर आएगा। इस तरह से तुम दोनों में से कोई तो टाइम पर आएगा। लेट्स सी इट अगेन। दैट वे वन ऑफ यू माइट बी ऑन टाइम। इट मीन्स कि इस तरह से तुम दोनों में से कोई तो टाइम पे आएगा। आगे देखते हैं। On time. We got lost. We got lost. We got lost का मतलब होता है कि हम भटक गए थे। हम भटक गए थे। तो we got lost का मतलब कि हम भटक गए थे। ठीक है? We got lost. हम भटक गए थे। Let's see it again. We got lost. हम भटक गए थे। And let me just write it in Hindi, then I'll tell you. So, we got lost. हम भटक गए थे। ठीक है? We got lost and it means हम भटक गए थे। Let's read again. हम भटक गए थे। Got it? आगे देखते हैं। Got lost. Then perhaps a map. Alright. After that she's saying then perhaps a map. तो शायद तुम नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो शायद तुम नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। Then perhaps a map. तो शायद तुम नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। सेंटेंस क्या था? Then तो तुम शायद नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। गॉट इट? क्या सेंटेंस बना? तो तुम शायद नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो तुम शायद नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है? सो देन परहैप्स अ मैप। तो तुम शायद नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। आगे देखते हैं। I trust you don't need one to find your seats. I think we're going to. I trust you don't. After that she is saying, I trust you don't need one to find your seats. कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सीट्स को ढूँढने के लिए नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सीट्स को ढूँढने के लिए एक नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी जस्ट राइट इट। मुझे लगता है कि तुम्हें सीट को ढूँढने के लिए नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें सीट्स को ढूँढने के लिए नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें एक सीट को ढूँढने के लिए नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? सो वी आर डन विद टुडेज़ क्लिप। आई होप आपको सारे डायलॉग समझ आए होंगे, ये पूरा सीन समझ में आ गया होगा। Please, I just want you to take these translations and use them in your day-to-day conversations. तभी you will be able to improve your English. So that's it for today's video. आपको अगर ये वीडियो से हेल्प मिली हो, कुछ समझ आया हो, then प्लीज़ इसे लाइक कर देना। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।